can we prevent disease from happening? My father has high blood pressure. I don't have. I've broken that pattern. So I also work like my father, so many hours a day, but still I don't take that pressure. So diabetes is actually love hormone. Yep. So hello all, welcome to our next podcast series on quantum energy, and we have Richa again with us to answer the questions we have. So last two episodes we have seen a lot of questions that have come and people have proposed some areas that they would want to know about. So हमारी कोशिश इस बार रहेगी, हमने जो पिकअप किया है इस सीरीज के लिए, that is on health, how energy negative or positive in the body can cause diseases in a human being's body. So welcome back, Richa, and thank you so much for your time. Thank you for having me. So not wasting much of your time, I know you are a busy person. So the first question for the series would be, we talked about energies, chakras. So very basic question, does energy also translate into disease? So negative energy or energy imbalance, does it translate into disease in a human body? Yes, it does, because energy has both polarities, as we all also, you're an electrical engineer, so as an engineer also you know that there is a plus and a minus to energy. So in the body also the electricity works the same way. So our feelings promote the electric currents in the body. तो जब भी आपके emotional imbalances होते, the way you feel also translates into diseases, but it does not come directly. You get the anxiety, then the depression, and then the phases go on so forth and so forward, and then manifest into diseases. Okay. So I think you jumped a couple of my questions. So, So coming back to the point. So the answer is yes to the first question. The second question as a follow-up would be, so can we prevent? First thing is, of course, prevention. As they say, prevention is better than cure. So can we prevent disease from happening if we align our energy properly or the chakras properly? And if yes, then the second part of the question would be, if somebody already has a disease, can it be cured by you with the right kind of energy channelization? So very beautiful question, that can peer prevention is always better than cure, and energy when floats in our body. Last one of these episodes we spoke about how the energy centers are small mini brains in our body. तो जो हमारे छोटे mini brains है वो एक दूसरे से coordinate करते हैं. Like how we feel is, I spoke about the heart. तो heart being the center of your energy in your body. जिस तरह से आप फील करते हैं वैसे ही आपके बाकी सिग्नल्स जाते हैं. जैसे आपने फील नहीं किया तो आपका माइंड ना एकदम, कई बार आप देखते होंगे एकदम स्टक जैसी फीलिंग आ जाती है. जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इन लाइफ, लाइक लॉस्ट काइंड ऑफ अ फीलिंग. सो माइंड इज ऑल्सो लॉस्ट. तो तब उस समय जो आपके बॉडी में हार्मोनल शिफ्ट्स आते हैं वो सबसे पहले धीरे धीरे, लाइक डिजीज, पीपल थिंक दैट डिजीज इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. नो, इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 years टू मैनिफेस्ट इन योर बॉडी. तो सबसे पहले तो अगर आपके माइंड में कोई लो फीलिंग्स चल रही है और बहुत लंबे समय तक प्रोपेल हो रही है, या आपको बहुत एंग्जाइटी रहती है, या यू फील अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, और आपको ऐसे लॉस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा रहती है, तो यू शुड कनेक्ट विथ समबडी हु कैन हेल्प यू आउट. बिकॉज स्लोली इट इज़ लाइक योर बॉडी ऑल्सो, हम जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है टू डाइजेस्ट द फूड एंड स्टफ लाइक दैट. इसी तरह से जब आपका मूड लेवल्स बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं तो आपकी बॉडी उस समय पे नेगेटिव हार्मोन्स, उन्हीं हार्मोन्स को नेगेटिवली आपकी बॉडी पे रिएक्ट करने के लिए डाल देती है, विच स्लोली ट्रांसफर्स इनटू disease, like affecting that particular organ in your body. Like suppose in your life you're not able to filter things. So आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो फिल्टर पे काम करता है? लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग. आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट? आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड? आर यू फीलिंग दैट यू वांट टू डू सर्टेन थिंग्स यू आर नॉट एबल टू डू? सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं हमारी लाइफ के जिसमें हम काम करना चाहते हैं. जैसे किसी को सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग नहीं हो रही है, किसी को लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि why I'm not able to enjoy things. So everybody has a different feeling in life. Yep. So I think that what I remember from last, I think episode 1 or episode 2 you talked about, it's all about how you feel from the heart, because that being the central point. So I think it all comes down to feelings. Very important. So I think you touched about a couple of areas. So one of the common areas these days, or common disease, I will not call it disease maybe, it is like, blood sugar levels vary, right? Which is now called diabetes, and it's very common. It could be hereditary and it could be naturally cause of stress and whatever. I don't know, right? That's what people talk about. Stress से भी आपको diabetes हो जाती है, hereditary भी होती है, and then your lifestyle, right? So these are the three common. But from your perspective,
what is the right thing? Why so many people are going through this disease, if you want to categorize it as So a disease? it's actually not a disease, but it's a unrest of the body. तो आपको मैं अगर सिंपल बोलूँ कि जो चीज़ नेचुरल स्टेट में है, जैसे अभी आप देखते हैं वेदर चेंज होता है, ये एक नेचुरल स्टेट है यूनिवर्स का, पर आपकी बॉडी क्यों उस चीज़ में बीमार हो जाती है जब भी कोई वेदर चेंज होता है? बिकॉज आप खाली उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं. इम्यून सिस्टम का इफेक्ट एनर्जी लेवल से होता है. तो आपकी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है, यानी यूनिवर्स का जो भी यूनिवर्स में है वो आपकी बॉडी में है. यानी अगर यूनिवर्स में शिफ्ट आएगा तो आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करेगी. पर अगर वो एक्लेमेटाइजेशन में इम्बैलेंस है, यानी आपकी एनर्जी लेवल्स में इम्बैलेंस है, तो आप यूनिवर्स की एल्गोरिदम पे नहीं चल रही है आपकी बॉडी. इट इज़ ऑन अ डिफरेंट एल्गोरिदम, जिसको हमने आज उसको समझने के लिए वी हैव पुट इन दोज वर्ड्स. बट सिंपल सिम्फनी is that your body and the universal energy are not matching at that moment. तो जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ वेदर, कि बहुत खांसी जुकाम हो जाता है इस समय पे, मैनी पीपल आर इन दैट फेज. और मैंने लास्ट एक एपिसोड में बताया था अबाउट दैट हाउ अवर एड्रेलिन रश अफेक्ट्स द बॉडी. तो आज हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, माइंड स्टाइल, आई डोंट कॉल इट लाइफस्टाइल, आई कॉल इट माइंड स्टाइल. वाई माइंड स्टाइल? बिकॉज हाउ यू सी थिंग्स अराउंड इन योर लाइफ. आप लोगों को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को सोशली कैसे देखते हैं, वो धीरे धीरे डिजीज़ में वो हो जाती है. और आज की जो टाइम पीरियड है या जो इरा है, जैसे अगर आप हमारे एंसेस्टर्स को देखेंगे, हमारी 4 जनरेशंस पहले, तो वहाँ पे इट वाज अ कम्युनिटी लिविंग. आज हमारा स्पेशलाइज लिविंग हो गई है. तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया. मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पूछते, मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं देते, मेरे पेरेंट्स ने उसे, मेरी सिस्टर को ये दे दिया, मुझे नहीं दिया. नाउ यू आर बिकमिंग मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एक्सपेक्टेशंस. तो धीरे धीरे, जैसे हमने डायबिटीज़ की ही बात की, सो डायबिटीज़ इज़ एक्चुअली लव हार्मोन. आपके इमोशन में लव की कमी होना. अगर आपको अनलव्ड वाली फीलिंग है या एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, तो कई लोगों को आप देखेंगे बहुत लो हो जाता है. तो उनकी लाइफ में उनको हमेशा ऐसे लगता है मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं, कोई प्यार करने वाला ही नहीं है मेरी लाइफ में. और हाई हो रही है तो ओवर एक्सपेक्टेड है माइंड. जैसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन है, जितने हार्मोन्स हैं दोनों की पोलैरिटी है. नेगेटिव भी वही हार्मोन काम कर रहा है, पॉजिटिव भी वही हार्मोन काम कर रहा है. ऐसा नहीं है कि जब आपकी बॉडी में आपके इमोशंस नेगेटिव होते हैं तो उस समय आपका कोई अलग हार्मोन पैदा हो जाता है. नहीं. जैसे हम एड्रेलिन की बात करें, तो एड्रेलिन अगर एक्सेस हो जाए आपकी बॉडी में, जैसे हम जिम जाते हैं तो आपको उस समय एड्रेलिन रश चाहिए होता है. तो एड्रेलिन क्या करता है, आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है कि ओके आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट वाली फीलिंग. अब आप उसी को आई कैन डू इट हाई में ले जाओ तो क्या होगा, योर हार्ट विल नॉट बी एबल टू पंप इट एंड यू विल हैव अ हार्ट अटैक, या आपका हार्ट फेल हो जाएगा उस समय. जो आजकल आप सुनते हैं जिम में प्रॉब्लम आती है कि अचानक से हार्ट फेल हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, दैट एक्चुअली इज एक्सेस एड्रेलिन रश. सो वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड वॉट एवर डन in the body towards excessive level is going to create some imbalance or pressure on that particular organ, which is manifesting into a disease. So basically I think what the gist is, of course there are multiple things, but my take is if a person has right amount of love in his life, parents, wife, kids, so the chances of that person getting a diabetic is lesser. एंड अगर आप उसको रिवर्स भी करना चाहते हैं तो आप पहले अपने माइंड, मैंने जैसे बोला इट्स अ माइंड स्टेट, आपका मेंटल मैट्रिक्स कैसा है, आप उन लाइफ की उन चीज़ों को कैसे प्रिसीव करते हैं. अगर आपके बिलीफ में ये है कि मुझे बचपन से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी की लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे विमेन हैविंग गोइंग थ्रू सर्टन इमोशनल पैटर्न्स, जैसे हमारे पास केसेस आते हैं कि पहले डायबिटीज़ नहीं थी, अचानक टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, somebody got an abortion because of the pressure that partner doesn't want, so many things. देखिए, आप कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है ना, तो आपके आसपास की वजह से आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. यू आर नॉट द ओनली डिसीजन मेकर इन योर लाइफ. तो जब आपका इमोशनल इम्पैक्ट इससे आता है कि आपको किन किन लोगों की वजह से वो डिसीजन लेना है, तो इसका मतलब है आप कहीं खुद को छोड़ रहे हैं. समवेयर यू आर लीविंग योर बीइंग, योर thought pattern, your thought system, and having to imprint somebody else's thought system, या किसी और के thought system पे आपको जीना है, या आपको जो चीज़ नहीं करनी वो आपको करनी पड़ रही है. तो आपका माइंड उस समय बहुत सारे वेरिएंट्स ढूंढता है कि मैं नहीं करना चाहती. अब आपको दूसरे को भी नाराज़ नहीं करना, यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू ऑल्सो बी हैप्पी, बट इन दैट you're not accessing your happiness but claiming somebody else's happiness to make the family work, और कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में.
और ज़्यादातर आप मैरिजेस में देखते हैं कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. आज हम भले ही एक सोसाइटी में रहते हैं एंड वी टॉक अबाउट इंडियन मैरिजेस नाउ एंड द डिवोर्स रेट गेटिंग हायर, बट वो इसलिए नहीं हो रहा है कि डिवोर्स कोई एक वो है सोल्यूशन है, बट या तो वो डिसएग्री करके बिल्कुल हो जाते हैं, सो दे डोंट वांट टू फाइंड अ पाथ. बिकॉज हमारी कंट्री में कम्युनिकेशन विथ थेरेपिस्ट इज़ लाइक थॉट लाइक अ मेंटल डिजीज़ कि आपका दिमाग ख़राब है, आप पागल हो गए हो. तो ऐसा हमारे माइंड में वो प्रिसीवियरेंस भी डाला गया बिलीफ सिस्टम में. तो लोग अगर इस चीज़ को बात करें तो दे कैन ऑल्सो सॉल्व इट आउट. तो वो जो चीज़ें बाद में मैनिफेस्ट होती है डिजीज़ में, आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ही प्रिवेंट कर सकते हैं. बिकॉज देखिए, जब हम किसी को छोड़ते भी हैं तो भी फीलिंग ऑफ अनलव तो रहेगी. ऐसा नहीं है कि आपने किसी को छोड़ा, मान लेते हैं आपका इमोशनल टच बहुत ज़्यादा था उस पार्टनर के साथ, अब आप दूसरी मैरिज भी करते हैं तो आपका कंपैरिजन आएगा कि पहला वो पार्टनर मुझे ऐसे करते थे. सो देन अगेन द लव इन्वॉल्वमेंट, लव इमोशन इज अगेन रनिंग इन योर सिस्टम. कंपैरिजन, तो आप कभी भी लव्ड फिर भी नहीं फील कर पाते एंड धीरे धीरे वो फिर डिजीज़ में, डायबिटीज़ में मैनिफेस्ट होती है. इसी तरह से ब्लड प्रेशर है एंड देयर आर मेनी डिजीजेस नाउ. Okay. So that's my next question. I think you already have been reading my mind for the last 2 episodes that we have worked together. So I think the next question was, of course, on blood pressure. People say मुझे blood pressure है, so blood pressure तो होता ही है सबके अंदर, but it's high or low, right? Somebody has high blood pressure, somebody has low blood pressure. So again, this is again could be hereditary. People again, you know, we know it could be stress levels, and from your perspective, you want to know what is it? It's again energy, or why this is becoming so common. And as you also gave an example of people getting adrenaline rush going to the gym, that's also, I think, blood pressure being so high at that time that blood again is the heart is not able to pump, right, or manage that high level of it's like a small motor in your body. Correct. So what is it? How do people, as a common man again, can prevent this from happening? So there are, in your question, what I want to address are two parts. First is, जैसे आपने बोला hereditary, एक ना mindset है कि सब चीज़ें hereditary होती है. देखिए, hereditary का मतलब क्या है? क्या आप जीन से लेते हैं? नहीं. यहाँ पे एक बहुत important element है संस्कार. संस्कार का मतलब आप अपने घर के environment में किस तरह से अपने पेरेंट को certain situations को हैंडल करना देख रहे हो. क्या वो excessive pressure से ले रहे हैं? This part comes from the behavioral DNA, not from the genetic DNA. तो जैसे आपने देखा कि मेरे फादर ने सर्टन सिचुएशंस में सर्टन वे में सर्टन प्रेशर से हैंडल किया, तो आपके माइंड ने उसी प्रेशर को ले लिया कि अच्छा, प्रेशर नहीं लेते ना तो काम नहीं होता है, दबाव नहीं आएगा ना लाइफ में तो तुमको, जैसे आप पेरेंट्स भी बोलते हैं तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से लाइफ में चीज़ें मिल जाती है. अब वो बच्चे के माइंड में आप यही बात डाल रहे हो कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, तो उसका मैनिफेस्टेशन जो सेट पैटर्न है वो ये है कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी, तो अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे चीज़ नहीं मिलेगी. अब अगर उसको मेहनत करे बिना चीज़ नहीं मिलनी, इसका मतलब उसको मेहनत करनी है. अब या तो वो मेहनत कर रहा है लेकिन अंदर से लो फील कर रहा है, अब वही चीज़ लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है. अब वो बहुत हाई प्रेशर में काम कर रहा है और अपने आप को भी ज़बरदस्ती धक्का मारा है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. सो द प्रेशर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सर्टन वे ही हैज़ सीन द पेरेंट वर्क. It is coming from the behavior, not from the genetic. But हमने उसको genetic ही दे दिया. My father has high blood pressure. I don't have. I've broken that pattern. So as a human, what you're asking prevented, the pattern can be broken by a human seeing how I can do the same thing in a different way. So I also work like my father, so many hours a day, but still I don't take that pressure. So I have seen my father take a lot of pressure. ये भी करना है, वो भी करना है, children है. I also have children, but I understand how to take that pressure off me. And if certain times I also analyze every day, as in one of the sessions I said, आप रोज ना अपने आप को 10 मिनट दीजिए. That prevention you asked me, prevention is better than cure. If you really want to prevent from going more into distress, take out 10 minutes for yourself. आप वॉक पे मत जाइए, कुछ भी मत कीजिए, पर आप 10 मिनट अपने आप को एनालाइज कीजिए अपनी लाइफ में. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपने हार्मोन्स को तभी बैलेंस आउट कर सकते हैं क्योंकि हम एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी इज डूइंग समथिंग. सी एनर्जी इट्स लाइक अ प्लग. योर इमोशंस आर डिसाइडिंग राइट नाउ व्हाट आई एम प्लग्ड इनटू. सो इलेक्ट्रिसिटी विल जस्ट फ्लो इनटू दैट
इमोशनल स्टेट, हमने एनर्जी को ना एक बहुत बड़े लेवल पे उसको बहुत एग्जैजरेट करके अपने दिमाग में समझा। आपकी बॉडी में तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही रहा है। अब आपको शॉक कब लगेगा आपके ऑर्गन्स को? जब आप उन इमोशनल डिस्ट्रेस के स्टेट्स में होगे, तब वही एनर्जी आपकी बॉडी को शॉकिंग स्टेट में ले जाएगी, पेन में, स्ट्रेस में। तो अगर आप उन चीज़ों को रोज़ 10 मिनट लिख के एनालाइज करें, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी होती है जिसमें वो कभी स्टूपिड नहीं लगना चाहता कोई भी काम करता, बट ऐसी कई जगहें होती हैं जहाँ हमें स्टूपिडिटी की फीलिंग आ जाती है। अब हम क्यों नहीं लिखना चाहते, उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते, या वो डिजीज़ में मैनिफेस्ट होगी। तो हम लोग, कई लोग मुझे बोलते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आपने कभी अपनी ग्रोथ को कभी सोचा है कि किस डायरेक्शन में जा रही है? बिकॉज एनर्जी इज नॉट वर्किंग ऑन इट्स ओन, it is working through your belief system in your emotions. So like the thought, then the emotion, and then the feeling. So how it is telling the energy to move in your body is how the disease will come. तभी मैंने बोला डिप्रेशन, अगर आपको लोनलीनेस की फीलिंग, डिप्रेशन की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग्स आ रही है, तो लिखो कि क्यों आ रही है। क्योंकि दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ attracting disease into your body. Because your body is feeling lost. Your mind, if it is lost, then it cannot direct your body. तो आपकी बॉडी उन्हीं लेवल्स को रेगुलेट करती रहेगी। Okay. So that people obviously with your answers would understand ki what they are feeling, what they are facing, what to do, what not to do. But again, right, कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर ही ठीक कर सकते, right? This case again, if I look at you as a doctor, and if you go to a physical doctor, right, people in India, you know, they go over the counter and buy medicines and eat. कि अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि वेदर चेंज हुआ, एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही सर्दी से या गर्मी से, तो आदमी बीमार हो जाता है, राइट? सो पीपल, यू नो, विल गो एंड बाय, एवरीबडी इन इंडिया आई थिंक नोज एंटीबायोटिक्स कौन सी खानी है, वो खा, एवरीबडी इज अ डॉक्टर। बट इन दिस केस पीपल वुड वांट टू नो कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद कर सकता हूँ, एंड एज यू नो इट्स ईजी टू से कि 10 मिनट निकालो, बैठो, सोचो, जर्नलिंग करो एंड ऑल दैट, बट most of the people may not know, right? So how and what are the steps they can take to prevent? Let's not look out curing, let's look at our audience, people who may not be going through this, and if they want to change certain things in their life, what are those things that they should do to prevent diseases from happening to them? So Gagan, there are 2-3 very important points which I as a therapist always see, and as an energy alchemist also I see कि सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में एक बिलीफ डाला गया है कि यू आर द बेस्ट, यू आर गुड एंड यू कैन नॉट फील रॉन्ग। लेकिन आप देखिए, हम ह्यूमंस हैं और हमारे अंदर सभी फीलिंग्स हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ स्मार्ट मूव कर देते हैं और हमें लगता है कि यार यू शुडंट हैव डन दैट, है ना, वो फीलिंग्स है आपकी। अब आपने मान लेते हैं उसको अवॉइड किया, तो वो आपकी बॉडी में कहीं तो स्टोर होगी ना, वो फाइल आपके माइंड में अगर है उस फीलिंग की से रिलेटेड, उस बिहेवियर से रिलेटेड, तो कहीं तो कोई फीलिंग इफेक्ट हुई। अब अगर आपने वो फीलिंग एड्रेस नहीं की एट दैट मोमेंट, बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक स्टूपिड इन योर माइंड, बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू अ इमोशनल पैच इन योर लाइफ, आप उसको ये देखने की जगह कि आप स्टूपिड लगे, आप ये पूछिए अपने आप से कि व्हाट कुड यू हैव डन दिस सेम थिंग इन अ बेटर वे। So we always avoid this conversation with ourselves. Instead we start blaming, अरे उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला और ऐसा हुआ। So जब आप जर्नलिंग करते हैं, या मैं जब लिखने के लिए जर्नलिंग से, फॉर मी जर्नलिंग इज़ नथिंग अदर देन, जैसे जर्नलिंग भी को भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना दिया, इट्स नॉट समथिंग वेरी वास्ट, इट कैन बी लाइक राइटिंग अ लेटर टू योर सेल्फ, सिंपल। कि आप अपने आप को चिट्ठी लिखिए आज कि भाई मैंने ये किया और मुझे लगता है कि मैं इसको इससे बेटर नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकती या कर सकता हूँ। सो क्या होता है, यू स्टार्ट बिल्डिंग अ कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, वे यू सी एवरीबडी वी डू प्रोग्राम्स, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबाउट सेइंग नो टू समबडी, हाउ वुड यू फील। सो जब हम ये कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो जिस तरह से हमें फील होता है वैसे ही दूसरे को फील होता है। एंड इफ़ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन वी यूज़ दी words in a better way, which we shared I think a month back when we spoke about the power word. There is a very powerful way of communicating with yourself is in power words. हम अगर powerful conversations करें खुद के साथ, तो पहले तो हम disease prevent कर सकते हैं, दूसरा हम अपने mind को clean कर सकते हैं। जैसे हम अलमारी clean करते हैं, ऐसे हमें रोज़ अपने thoughts को भी अपने head से clear कर लेना चाहिए।
जैसे आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे, दे विल ऑलवेज से आई एम गोइंग टू क्लियर माई हेड, आई वांट टू गो फॉर अ वॉक टू क्लियर माई हेड. सो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए रात को सोने से पहले. क्योंकि आज अगर आप देखें तो रात को आप भले 8 घंटे फिजिकल बॉडी से सोते हैं, पर माइंड आपका हाइपर एक्टिव है. तो आपकी जो बॉडी में हीलिंग होनी चाहिए वो रात को 8 घंटे टेक्निकली आपकी बॉडी उसी के लिए रीसेट है, बट डिजाइंड है. सो योर ह्यूमन बॉडी मशीन इज डिजाइंड टू टेक relaxation in the night. But now let's say your mind is using that electrical circuit in the night also, which is not supposed to be used, क्योंकि बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक रिटेन करती है. अब आप मान लीजिए कि अगर 8 घंटे आपका माइंड हाइपर एक्टिव है और रात भर सोच रहा है या फियर कर रहा है या डाउट कर रहा है या एंग्शियस है सुबह क्या होगा पे, अब आप बताइए कि उस समय आपके बॉडी में किस तरह के हार्मोन्स चल रहे होंगे. अगर वही जो एक्टिविटी वाले हार्मोन्स चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी हील तो नहीं हो रही है. तो अगर आपको किसी रात को भी ऐसा लगता है कि आप सुबह फ्रेश नहीं उठे या पूरी रात आपका माइंड चर्न करता रहा, तो उस दिन को स्टार्ट करने से पहले चाय पीते समय या आप कॉफ़ी पी रहे या सुबह आप बैठ के पानी पी रहे, आप बैठ के अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए कि ऐसा क्या कल मेरी लाइफ में इतना एंग्शियस हुआ कि मैं सारी रात डिस्टर्ब्ड स्टेट में थी. क्योंकि माइंड इज द की. It's a matrix which we are stuck in. So we need to understand this mental matrix of ours. Okay. So thank you so much for that answer. And I think from, I see some instruments probably kept here, which probably you will tell our audience if these are also certain things which help in healing, in, preventing disease. And as I think when you say 10 minute nikalo, subah walk pe jao, tab socho, clean your mind. I think there is so much of information today in digital era. Everybody has got a phone in hand. तो वहाँ पे आपको ज्ञान का सागर, पता नहीं सागर से भी कुछ बड़ा होता तो वो होगा शायद. Everybody knows everything, I think now, right? So वो इतना information है कि people don't know the right things what need to be done, right? So there is meditation. If you look at me, what I know again from that information that I also have and I do a lot of research. So एक yoga, एक meditation is what people talk about. ये करा करो दिन में 10 minute, right? And it calms you down or whatever. So the question our audiences have asked is, does meditation or yoga in any form during any time of the day, if done, does it also help in our energy channelization and energy balance? See, I always talk one very important thing is look at the facts happening around you. खाली मेरे बोलने पे भी आप मत जाइए, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला डिजिटल एरा है और इतना इन्फॉर्मेशन है, तो मैं भी एक इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स की बात करती हूँ. मैं आई एम ऑलवेज अ फैक्ट पर्सन. आप अगर अपने आसपास देखिए कितने लोग योगा कर रहे हैं, आर दे हेल्दी? इफ दे आर डूइंग मेडिटेशन, इज देयर माइंड हैप्पी? नहीं है. नॉट बिकॉज योगा इज नॉट अ गुड साइंस और मेडिटेशन इज नॉट अ गुड साइंस, बोथ आर वेरी पावरफुल साइंस. लेकिन अगेन आपको समझना पड़ेगा कि आप किस इरा में रह रहे हैं, किस तरह के आपके माइंड की ट्रेनिंग है, एड्रेनलिन रश के लेवल्स क्या है आपकी बॉडी में, आपके सोचने का स्टाइल, माइंड स्टाइल क्या है. द बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द माइंड. माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम आज वर्ड यूज करते हैं कंट्रोल, पर मैं आपको पूछती हूँ कंट्रोल क्यों करना है जबकि माइंड से ही आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी आती है. हमने आज थिंकिंग को स्विच ऑफ कर दिया है. हम सोचते हैं मेडिटेशन करें. मेरे पास इतने लोग क्वेश्चन करते हैं. हमारी मून मेडिटेशंस भी होती है एवरी मंथ 3 days विच इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीबडी. अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम पहले आपको माइंड को क्लीन करना बोलते हैं. क्योंकि आप मान लीजिए अगर आपने माइंड क्लीन नहीं किया, आप बैठ के खाली मेडिटेशन कर रहे हैं, चलो जी मैं ध्यान लगा रहा हूँ. अब आप जैसे ही बैठेंगे आपके माइंड में शोर शुरू हो जाएगा, चैटर चट 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 चट. नाउ इफ यू हैवंट आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई इज दिस क्वेश्चन अकरिंग टुडे, इज देयर समथिंग आई हैव लेफ्ट ओपन इन माय माइंड. आप जैसे ही वो क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, देखिए कि आपके ब्रीथ लेवल एकदम साइलेंस हो जाएगी. क्योंकि जब भी आपकी ब्रीथ में वेगनेस होगी, इसका मतलब आपका माइंड चल रहा है. अगर आपको जिस समय आपको ये पता चल जाए ना कि आप बैठे भी हैं और आपको सांस आ रही है जा रही है पता नहीं चल रहा, यू आर वेरी साइलेंट. इट इज़ लाइक द रिदम इज ऑटोमेटिक. क्योंकि आप सांस ऐसे थोड़ी लेते हैं, you're not thinking about breathing. So when your body is calm, when your mind is calm, the breath level starts dropping. So meditation or dhyan is dropping of the breath levels, meaning silencing of your mind, and it is calming down your organs. It is giving rest to your organs, and you can be doing it even when you are having this conversation. Right now I am so calm.
even in this podcast. So I am in the dhyan state, meditative state only. And yoga is also another extension of meditation only, where you are training your body. But again, if the mind is agitated, then you are not even able to see where your hand is going straight or the elbow is tilted. So your dhyan is not in the yoga. Yoga is a kriya. Kriya meaning it creates a certain way of body state which lets the whole algorithm of emotions and energies and hormones come into synchronization in the body, and then again it brings you to the meditative state only. So today we think that yoga is all about weight loss or just keeping ourselves fit. No, yoga, if you are in the dhyan state, if you can take through yoga your body into the dhyan state or the meditative state, that automatically will balance your hormones. Thank you, Richa, for that one. So I think you forgot in your explanation what are these, and do these also play a role in, helping one to prevent disease, or somebody has already got a disease if they come to you. So what are these and why do you use them? So these are all called tuning forks, and there are two variants of tuning forks. This is one, and this is the second variation. If you see the difference, it's not just the height or something, but here we have something different than this. So these are called unweighted and these are called weighted. They have extra weight. So these are tuning forks. When I play them, so I would like you to close your eyes when I play them, so you can feel how what the sound created inside you. So there is a feeling which comes to you when you hit. So this is actually a theta brainwave frequency, and this is actually a meditative state frequency. So when you are in these frequencies, when we heal you during our sessions, so these really help you bring out a lot of energy. So if you can, you just play it like this and put it on your hand. Show me your hand. Yeah, I can feel a vibration In the whole body. in the body. Yeah. So this actually converts brings you to your natural tones. So this really helps you calm your nervous system. So basically what happens in the body is that your nervous system is mostly affected because the nerves are connected through all these 7 chakras, or which I call the mini brains or the energy centers. So what starts happening is one is not happy, so it is giving unhappy signals to the others. और उसमें क्या होता है, क्योंकि जो आपकी वेन्स है या ब्लड है वो जो मैसेजेस लेके जाता है थ्रू दिस इलेक्ट्रिक करंट्स इन द बॉडी, द नर्वस सिस्टम गेट्स अफेक्टेड द मोस्ट. तो जब हम ब्रेन ट्यूनिंग फोक्स करते हैं या सल्फेजियोस करते हैं या वेटेड वाले करते हैं, दिस इज़ अ यिंग यांग वन. सो वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ ट्यूनिंग फोक्स एंड वी डू सेशंस एंड वी हेल्प through bringing the balance through the nervous system, because vagus nerve के साथ ये connected होता है, पूरा जो आपकी मेन nerve है उससे छोटी छोटी branches connect होके आपके brain को signal भेजती है. तो this is a whole science, and this helps you calm your emotional states, your mental states, so that आपके पूरी जो nervous system है वो relax हो जाए और आपके जो chakras है जो connected है वो right messages दे पाए. तो this is like a science जहाँ आप अपने बारे में जानते हैं और अपने आप को ज़्यादा लेवल्स पे समझते हैं. why your performance is not coming. So there is a lot in human life which some people have certain goals which they are not able to achieve after a certain point, or somebody is stuck in a situation. तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं. एक है हमारा वो हिस्सा जो हम जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, और एक होता है कि जब हमें समझ ही नहीं आता, माइंड डिप्रेस हो जाता है, तो वो धीरे धीरे डिजीज़ क्रिएट करने लगता है. तो 2 ही डिविजन्स है लाइफ के. One is this and the second one is this, the goal achievement part. तो जो हम ट्यूनिंग फोक सेशंस करते हैं तो उसमें हम उस इंसान को उन स्टेट से बाहर लाते हैं और हील होने के उसके एक नए, दिस इज़ अ डिफरेंट मोडालिटी ऑफ हीलिंग. In 5D, we add 5D and tuning forks together to build that science in a particular human. So thank you, Richa, for explaining why these tuning forks, weighted and non-weighted, and I'm sure in your sessions you cover them in much more detail and people can see how it helps. So in the previous podcast, a lot of questions had come. A lot of people I think have reached out to you. There are people who are wanting and looking forward to your next sessions across cities they would want to attend. So I think they are overwhelmed with the kind of answers that you've given, and they think that this would probably help them. Now in your last answer, or maybe one before that, you talked about moon meditation, which you conduct almost every day and for free. So not that because of free people would want to do it, but
just to know what happens in there, and if people are interested, how would they know what time, when is it happening? So if they want to attend, so if you can tell the audience how and when can they attend it? So moon meditation happens on every full moon and it starts 2 days before the full moon. तो जो भी full moon होता है जिसको हम हिंदी में पूर्णमासी बोलते हैं, तो पूर्णमासी और उससे 2 दिन पहले होता है. अनाउंसमेंट फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों जगह पे होती है. एंड वी ऑलरेडी जो लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक होता है वो होता है वहाँ पे. सो इफ़ एनीबडी गोज ऑन दी वूम स्टोरीज or where you're watching this podcast, so you can find that link there, and or even DM us, then we can send you the direct link. So whatever way people want to take or get that. So and it's a very powerful way to unwind yourself, क्योंकि हम पहले आधे घंटे का लेक्चर होता है and then half an hour to 40 minutes की meditation होती है the same live, and it happens only live. We just delete it because हम उस समय जो energy levels होते हैं universe के, we actually channelize the energy of the universe and help connect. पर उससे पहले जैसे मैंने बोला हमारा 5D जो मोडालिटी में हम काम करते हैं, वी वर्क ऑन द क्लीनिंग सिस्टम, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली खुद कुछ नहीं करती. एनर्जी तो अभी भी है, आपकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी. बट अगर मेरा सिस्टम क्लीन है तो उसी एनर्जी को हम हाई पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम वैसे कन्वर्ट नहीं कर पाते होते हुए भी. सो थैंक यू रिचा, आपने हमें एक्सप्लेन किया और आपने मून मेडिटेशन के बारे में बताया. तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आज का है, कुछ लोग होते हैं जो डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, उनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं. सो कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो ये एनर्जी एंड 5D हीलिंग के थ्रू क्योर की जा सकती है. सो ये क्वेश्चन एक बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा डिसेबिलिटी को खाली डिसेबिलिटी मानते हैं. अब आपने एक स्टीव हॉकिंस करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो बहुत डिसेबिलिटीज़ के साथ बॉर्न हुए, बट उनका माइंड, देखिए माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है इस यूनिवर्स में. अब पेरेंट्स कहाँ स्टकअप हो जाते हैं, वो इस डिसेबिलिटी में स्टकअप हो जाते हैं, बट उस बच्चे की बर्थ का रीज़न नहीं समझ पाते. ऐसा हमारे पास एक और बच्चा भी है, हुज स्पेशल चाइल्ड, और वो बच्चा ही कैन रन अ कॉफ़ी शॉप, he can make popcorns, and he's around 23-24 years old. He plays disc hockey till the national levels. पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो सोल बॉर्न हुई है वो ऐसा क्यों चॉइस करके आई है. क्या वो बिना, मतलब जैसे मैंने बोला भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विच टच मी रियली, कि ज्ञान के लिए हम बर्थ लेते हैं टू नो आवर पोटेंशियल इवन व्हेन आवर माइंड लेवल्स आर स्लो. तो अगर आप स्लो माइंड लेवल्स में भी उतना कर सकते हो, अगर बॉडी डिसेबल्ड है तो भी आप उतनी चीज़ें कर सकते हो. हम कहाँ स्टक हो जाते हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, हम बच्चे को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं. पहली चीज़ तो डिसेबिलिटी जो बॉडी में बाय बर्थ आती है, दैट हैज़ कम विद अ पर्पस. क्या हमारा कार्मिक अकाउंट है, क्या मुझे आपको कुछ देना है, क्या आपको मुझे उन चीज़ों को लर्न करने में सपोर्ट करना है और उसमें आपको भी लर्न करना है. सो दे विल नॉट बी क्योर्ड बिकॉज द चाइल्ड इज़ बॉर्न विद दैट पर्पस. तो इवन कोई हीलिंग करना भी चाहेगा तो नहीं होगी. एक सर्टन वे होता है जहाँ गर्भ में माँ बच्चे को जब रखती है एंड द सोल इज़ नॉट बॉर्न विद दैट इंटेंशन, बट द मदर गोइंग थ्रू द इमोशनल लेवल्स, बिकॉज गर्भ में पानी होता है, राइट, और वाटर इज़ द हाईएस्ट मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स. तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट्स भी पास होती है इमोशंस के थ्रू. तो बच्चा उसमें उस समय डिस्ट्रेस में होता है, क्या उस समय के पीरियड की वजह से वो बच्चे के लिए वो बर्थ हुआ, लेकिन उसके सोल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था. तो जब वो सोल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता और मदर के डिप्रेशन की वजह से होता है, तो वूम्ब क्लियरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वो चीज़ों को क्योर कर सकते हैं. लेकिन अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और उसकी सोल इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बॉर्न हुई है, तो मुझे इस पेरेंट से ये लेना है, इस पेरेंट ने मुझे ये काम करना है, इस पेरेंट्स ने इसमें जब मुझे सिखाएगा, बिकॉज व्हेन यू टीच समबडी और यू आर गोइंग थ्रू द सेम जर्नी विद समबडी, यू ऑल्सो लर्न. तो क्या उस पेरेंट का भी लर्निंग पार्ट है जो वो अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बिकॉज कंप्लेंट आ रही है, मुझे ये करना पड़ रहा है आज, मेरा इसकी वजह से ये नहीं हो रहा, तो आप लर्न नहीं कर रहे हो. सो दोज कैन नॉट बी एंड दीज कैन बी. सो दे आर, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द पर्पस और द रीजन. Okay, so to an extent maybe yes, maybe no, depends again, individual to individual. So बहुत बहुत धन्यवाद रिचा आज के सेशन के लिए. काफ़ी नॉलेजेबल सेशन था, काफ़ी कुछ मैंने सीखा और आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा. एंड अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो प्लीज़ व्हेन यू सी दिस पॉडकास्ट, जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, आप उसके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं और मैं, मेरी टीम, रिचा जी और इनकी टीम जितने भी क्वेश्चन आपके आंसर कर पाएँ, हम पूरा कोशिश करेंगे करें. और अगर कुछ और आपको और सेशंस में कुछ देखना चाहते हैं, जैसे आज हमने कुछ डिस्कशंस किए, आपको किसी चीज़ के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहें, अब जैसे मैंने देखा है कि ट्यूनिंग फोक्स, तो मैं जानना चाहूँगा, और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा.
और of course the last question is very intriguing and the answer was also very intriguing कि these are karmic accounts which come from the back. कुछ लोग अपनी माँ के womb में भी current की वजह से कुछ changes होते हैं. So I think it's a very deep, as my question was deep, I think the answer is much more deeper than that. So maybe हमें इसके ऊपर भी एक सेशन करना पड़ेगा. But अगर आप interested हैं, so please mention that in the description and we will definitely answer those questions and probably do another podcast on this. And धन्यवाद रिचा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे viewers को? Thank you, and thank you for liking and loving us so much, and so many comments coming. Thank you so much. Really appreciate from the bottom of my heart. Gratitude. धन्यवाद.